चाहोगे? फटा पोस्टर निकल चुरा, एक अलग तरह की स्टोरी, कमर्शियल स्टोरी के बाद एकदम कॉमेडी में आ रही है, किस तरह की रहा? Actually, it was a conscious sort of decision. You know, Barfi के बाद I wanted to do a commercial film, an absolutely masaledar film, and like the promo says, mast film. So I think Phata Poster has all those elements. You know, उसमें you'll have comedy, romance, drama, action. It's entertaining. It's a true blue entertainer. It's something that is very new for me, or I really hope that people like it after the work I've done in Barfi. प्रोमोस देखे अब शाहिद के पीछे, पुलिस के पीछे ज़्यादातर भाग रहे हो, ऐसा क्यों है? वैसा क्यों है? क्योंकि मेरा कैरेक्टर का नाम है काजल, लेकिन सब लोग उसे कंप्लेंट काजल बुलाते हैं क्योंकि शी इज़ सेल्फ अपॉइंटेड काइंड ऑफ सोशल वर्कर, और उसे ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्लेंट लिखवा दें हमेशा जहाँ पे भी गलत काम होता है. शी गोज स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशन एंड टेल्स द इंस्पेक्टर कि ये लिखो, ये यहाँ पे गलत काम हो रहा है, आज चलो मेरे साथ इमीडिएटली इनको अरेस्ट करो. सो इट्स रियली फनी एंड शी एक्चुअली इज़ लुकिंग फॉर यू नो सम ईमानदार, you know, bharosedar kind of cop, and she bumps into Shahid and she actually thinks he's a cop. So it's very funny because she genuinely takes her job very seriously. She really thinks that it is her job to write complaints. That's why she's called complaint Kajal. रियाना, आपके और शाहिद की केमिस्ट्री कैसी रही? ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री? Off screen chemistry? ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रही? You said off screen chemistry? On screen chemistry I think has really worked for Shahid and me because I mean it's a fresh pairing, and Shahid, I think Shahid's playing such a wonderful role in the film. He's got this really chocolate boy image, but I think it works so well for our film. And you know, he's playing different shades of everything. There's action in the film, immense amount of action in the film, but also there's so much comedy and so much of drama and so much of romance as well. So I think it's worked so well for us. I think people are seeing me for the second time after Barfi, so I think it'll work. ऑफ स्क्रीन की बात निकली, आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी शाहिद की कोई भी फिल्म आई है तो अफेयर, रोमांस, इस तरह की खबरें आती रही, तो इस बार आपने अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करके रखा था कि खबरें नहीं है इस तरह की कुछ चीज़ें? I think प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं थी because I don't know how these rumors come up. Mostly these rumors are just rumors and there's no truth to it. But what I can say about Shahid and me is that we've just been working together. There hasn't been time to do anything off screen or hang out or even meet up for a coffee off screen. So we've both been very busy in our own respective films, but it's been fun working with him. We've got a really good working relationship, and I think आपको ये दिखाई देगा, you know, film में the chemistry has really worked. So I think you like that. वैसे इंडियन सॉन्ग्स को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? Gee, it's such a hard choice to pick out my favorite song in the film, but I think what I like the most is I like Tu Mere Agal Bagal a lot because it's very different. You know, मैंने काफ़ी songs किए हैं even in the south, but this is such a different song. It's got a new concept. The doggy step is something that everybody likes so much, so that's become one of my favorite songs. शाहिद ने कुछ टिप्स दिए डांस के लिए कुछ? जी बहुत दिए, लेकिन मैं ट्रेंड नहीं हूँ डांसिंग में, तो मुझे बहुत टेंशन होता था सॉन्ग शूट करने के टाइम पे, बट ही इज़ हेल्प मी आउट अ लॉट एंड ही यूज्ड टू हेल्प मी आउट एंड एटलीस्ट गाइड मी थ्रू मोस्ट ऑफ द स्टेप्स, सो इट वाज रियली गुड. थैंकफुल दैट ही वाज देयर. But I hope it comes out really well. I mean, he's a brilliant dancer, all of you know that. राजकुमार सुंदर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? वो कॉमेडी के तो सरताज माने जाते हैं. जी हाँ, my God, राजी has his unique style of films और लोगों को ये बहुत पसंद है, तो it's that little benchmark that you've got to hit, you know. If you don't reach that level in Raji's film, then I think the film doesn't work. So it's very challenging working with Raji. He takes his time when he does his film, and that's why I think his films do so well, because he really puts his effort into it, or he doesn't stop till he gets what he wants. So he'll take any amount of takes, but he wants to get a perfect shot at the end of the day. And I learned a lot from Raji. I mean, his comic sense is fantastic. He's also a very, very good actor. So हम लोग, you know, we should just watch him do what he's doing and copy him. बहुत सारे कॉमेडी सीन्स है, तो कौन सा एक डायलॉग है जो आपको याद रहे या फिर शेयर करना चाहोगे? मेरे बहुत डायलॉग्स हैं यार फिल्म में, माय गुडनेस, लेकिन the one I remember the most is that she takes him to a club और उनमें बहुत सारे गुंडेज they're standing in front of him, और ये बीच में आ जाके बोलते हैं कि इंस्पेक्टर ना बिना ब्रेक का बोलते सर एक बार चलता है ना तो रुकता नहीं है, तो ये पीछे से बोल रही है हट रही, क्या बोल रही है, हट जाओ यहाँ से. So it's really funny. I think the film and the promo sort of explains how crazy this film is going to be. फिल्म
उसके प्रोमो देखकर तो लोग दीवाने हो ही गए, तो और लोगों को दीवाना बनाकर थिएटर में आने के लिए आपके स्टाइल से कुछ बोलिए। Well, अपने दिल से बोलूँगी कि we've put a lot of hard work into this film. It's been lots of fun doing this film, और I hope that all of you like it. I hope you all enjoy it. You'll come to the theaters on the 20th of September. Watch Phata Poster Nikla Hero. Have a laugh, enjoy, laugh with us, cry with us, and just be thoroughly entertained and go back home. इलियाना, ये बताएं कि आप सलमान के साथ भी फिल्म करने जा रही हैं, उस पर कुछ कंफर्मेशन बताएंगे? Well, I've heard a lot of these reports coming out, but there's no truth to it. Personally, मेरी कोई बात नहीं हुई है डायरेक्टर से, and nothing has been finalized, nothing has been official yet. If something happens, I'll definitely let you know. What's your upcoming projects? I am doing a film with Varun that's being directed by David Dhawan, and I'm also doing a film with Saif that's called Happy Ending, being directed by Rajan TK. जैसे सलमान की बात निकली, इस मूवी में सलमान का कैमरा देखने Well, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती उस बारे में. I would like it to be a surprise, so whether you see Salman or not is a surprise. So. थैंक यू। इलियाना, बॉलीवुड में आपके किसके साथ ज़्यादा काम करने की इच्छा है? Well, actually, there's a lot of actors in Bollywood. I can't pick one. It would be very unfair to somebody else. So I cannot pick one actor, but there's tons of actors. I think I've just started my career, so really looking forward to working with better actors in the future. और फेवरेट कौन है आपका बॉलीवुड में? Well, my favorite actress is Kajol. और एक्टर? एक्टर के बारे में बोल नहीं सकती. सर, मुझे काम करना है बॉलीवुड में. Upcoming film Phata Poster Nikla Hero. Tell me about that character and the character you're portraying in the film. फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो. उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है विश्वास राव. फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी. विश्वास राव फिल्म के अंदर एक्चुअली सच्चाई में वो एक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी माँ का सपना है कि वो एक ईमानदार इंस्पेक्टर बने. तो इस वजह से फिल्म में बड़ी सारी कंफ्यूजन हो जाती है, और वो जब मुंबई आता है तो वो एक्टर बनने की कोशिश में, लेकिन सब लोग उसको इंस्पेक्टर समझने लगते हैं. तो इज एक्चुअली अ फेक कॉप, वो रियल कॉप नहीं है. और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेस यही है कि वो नहीं चाहता कि वो कभी भी किसी लड़ाई या झगड़े में पड़ जाए. और इलियाना का जो कैरेक्टर है, who's called कंप्लेंट काजल इन द फिल्म, जो हमेशा कंप्लेंट लेकर आती है, वो इसको अलग अलग जगहों पर जाके छोड़ देती है गुंडों के सामने, और कहती है कि अब तुम इनको हैंडल करो. और उसको ऐसा लगता है कि मुझे फाइट नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसके चेहरे पे चोट लग गई तो उसकी एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा. तो इस वजह से जो सब कंफ्यूजन फिल्म के अंदर होता है वो होता है. इट्स टिपिकल राजकुमार संतोषी कॉमेडी. एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत सारा कॉमेडी है, काफ़ी सारा एक्शन है, रोमांस है, गाने हैं, मस्ती है, बैगी भी है, सब है. शायद जब हीरो पोस्टर फाड़ के निकलता तो क्या होता है, ये बताइए. भैया, पहली बात तो मैं ये बता दूं सबको कि जब हीरो पोस्टर फाड़ के निकलता है तो एक्चुअली पोस्टर को फाड़ने की कोशिश ना की जाए. हम लोगों ने जब ये सीक्वेंस शूट करने की कोशिश की तो पहली बार तो मेरा फेस ही ऐसे चिपक गया था पोस्टर के ऊपर, क्योंकि हम फिर हमने रियलाइज़ किया कि विनाइल मटेरियल जो होता है जिसका एक्चुअली पोस्टर बनता है वो काफ़ी हार्ड होता है. तो उसको पहले अलग अलग तरीके से काटना पड़ा हम लोगों को. फिर उसको काफ़ी तरीके से काट के हम लोग 3rd फ्लोर से मुझे जंप करना था. तो मैं जब 3rd फ्लोर से जंप कर आया तो मेरा हार्नेस जो है वो जो पोस्टर था उसके अंदर अटक जाता था, तो मैं हवा में ऐसे लटका रहता था. फिर हम लोग नीचे आके हम लोगों ने किया. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए घर पे पोस्टर फाड़ के निकलने की कोशिश ना करें. अगर फाड़ें तो पेपर का पोस्टर फाड़ें, विनाइल का पोस्टर फाड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो फेस पे काफ़ी चोट लग सकती है. शायद ये फिल्म करने के दौरान आप अपनी स्ट्रगल लाइफ के पीरियड में गए थे, कुछ एक्सपीरियंस? मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैडम. कुछ याद, मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड ही चल रहा है. आपकी कुछ यादें ताज़ा हुई थी जब आप हीरो बनना चाहते थे इस फिल्म में? जी, मैं जिस तरह से विश्वास राव कहता है ना कि एक दिन मेरे भी बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, तो मैं भी जब एक्टर नहीं बना था और जब मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे भी ऐसे ही ख्वाब थे कि एक दिन मेरा भी पोस्टर लगेगा, मेरी भी फिल्म रिलीज होगी. मुझे याद है मैं होर्डिंग्स के नीचे खड़े रह के देखा करता था कि यार एक दिन मेरा लगेगा पोस्टर, नहीं लगेगा. तो डेफिनेटली मैं भी उन मोमेंट से गुजरा हूँ. मैं भी ऑडिशन देने गया हूँ, मैंने वो सब किया. How is working with Rajkumar Santoshi? Raji is a fantastic director. I think उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ टाइमिंग इज आउटस्टैंडिंग, और मैंने इस पूरी फिल्म में सिर्फ उनको कॉपी किया है और कुछ नहीं किया. धतिंग नाच क्या होता है? सर, आप कभी गणपति फेस्टिवल में गए, कभी शादी वुदी में गए, थोड़ा टुनून हुए, तो उसके बाद जब बॉडी अपने आप करने लगती है ना चीज़ें जो ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, तो धतिंग नाच वो होता है कि जब आदमी कोई भी स्टेप नहीं करता और बॉडी टेक ओवर कर लेती है और उल्टे सीधे मूवमेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं धतिंग नाच.
तो हमने उसके ऊपर एक गाना किया है जिसका नाम है 1 2 3 4 5 चल धतिंग नाच। शायद वैसे प्रोमो में डायलॉग जो है काफ़ी फेमस है, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा रहा? मुझे एक्चुअली फिल्म के अंदर बड़े सारे डायलॉग अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला सीक्वेंस है जिसमें मैं लाइन करके बोलता हूँ प्याज के छिलको, वो वाला डायलॉग मुझे अच्छा लगता है। एक डायलॉग अपन सिर्फ एक, जितनी चाहे बोल दो। ए प्याज के छिलको जरा स्टाइल मारा थोड़ा खुल दिया, इतने में तो रोता है क्या, अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या। शायद आपने अपने डांस से काफी एक्ट्रेस को बताया है, लेकिन इस बार मैंने डांस से काफी एक्ट्रेस को पटाया है। इन द फिल्म्स में आपकी फिल्मों में डांस से एक्ट्रेस को कैसे पटाते हैं ये टैलेंट मेरे अंदर पता नहीं, मुझे मतलब ये नई आपने एक नया आइडिया दिया मुझे कि डांस से पटाओ। अच्छा, एक्ट्रेस को किस तरह से पढ़ाते हैं ये बताइए। क्या कि सॉरी, एक्ट्रेस को किस तरह से पढ़ाया जाता है? बेटा वो कैमरे के सामने सवाल में पूछो, बाद में अलग से आए फिर मैं अच्छे समझाऊंगा तुम्हें कि कैसे एक्ट्रेसेस को पटाते हैं। इलियाना के सामने आपको कुत्ता भी बनना पड़ा एक गाने में। नहीं, इलियाना के पास अपना कुत्ता था, मुझे कुत्ता बनने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कह रहा था कि तेरे डॉगी को मुझे काटने का नहीं है ना, तो वो गाना है फिल्म के अंदर जिसका नाम है तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ। तो उसके अंदर हमने एक स्टेप किया है वैसे, बिकॉज वो कह रहा है कि तेरा रास्ता रोकूं तो टोकने का नहीं और तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं। तो मैं कुत्ता नहीं बना। आपको ऐसा लग रहा था मैं कुत्ते जैसा लग रहा था? आपने एक्टिंग की ना, शाहिद एक्टिंग, हाँ। शायद आपकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस कुछ धमाल नहीं कर पाई थी, अभी आप पे कितना प्रेशर है इस फिल्म को मतलब एज ए बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस आने का? देखिए हर फिल्म से एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन मैं फिलहाल काफ़ी खुश हूँ। मुझे जितना भी रिस्पांस मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि लोगों को प्रोमोज अच्छे लग रहे हैं। और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि क्योंकि मैंने ये जॉनर अभी से पहले कभी किया नहीं है, तो ये जॉनर मेरे लिए बहुत नया है। और लोग क्या इस जॉनर में मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो पहले प्रोमो से ही एक आइडिया तो मिल जाता है कि या तो लोग कहेंगे कि यार नहीं यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, या लोग कहेंगे कि नहीं यार मुझे अच्छा लग रहा है, फिल्म देखते हैं कि मजा आएगा या नहीं। तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है फिलहाल इस जॉनर में। और आई थिंक मुझे सपोर्ट है राज जी का, जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उस जॉनर की बहुत ही अच्छी फिल्में बना चुके हैं। तो उनके साथ काम करके मुझे आई थिंक एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिला है। फिल्म के गाने जो हैं वो मुझे करने में बहुत मजा आया है, आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। बट ऑब्वियसली 20 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी, और उससे पहले मैं अभी इनफैक्ट अपनी टीम से यही कह रहा था कि मुझे एक जगह बैठने में दो यार, मुझसे कुछ कराते रहो, क्योंकि मैं बैठूंगा तो मैं सोचने लगूंगा, और मैं अभी सोचना नहीं चाहता। मैं सिर्फ फिल्म को प्रमोट करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बी हैप्पी राइट नाउ, बिकॉज 1 साल बाद मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। हिट एंड फ्लॉप से कितना इफेक्ट पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में आपने रिटर्न देखें? ये तो मैडम हर प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है दैट दे मस्ट डू वेल, बट हर एक्टर की लाइफ में हिट्स आती है, हर एक्टर की लाइफ में फ्लॉप्स आती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक्टर के लिए ये है कि क्या ऑडियंस आपको देखना चाहती है, क्या ऑडियंस आपको पसंद करती है। ऑडियंस अगर आपकी फिल्में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे तो वो समथिंग यू कैन चेंज, आप बदल सकते हैं, आप अपनी चॉइसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑडियंस आपको नहीं देखना चाहती तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक द फोकस शुड बी कि यू शुड ऑलवेज डू फिल्म्स फॉर योर ऑडियंस, एंड यू शुड ऑलवेज हैव अ रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस। आपकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, लड़के में तो बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से चयन करते हैं फिल्मों का? अभी किस तरह से चयन करते हैं, हाउ यू चूज अ फिल्म? मेरी चॉइस हमेशा कुछ हद तक इंस्टिंक्टिव रहती है, जो मुझे एक्साइट करता है सब्जेक्ट में वो करता हूँ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं किन डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, आई नीड टू हैव कंप्लीट फेथ इन देम। ये पीछे यार बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, प्लीज़ कह दो, बड़ी सारी बातें हो रही है। शायद अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? रैम्बो से निकला हीरो ऑन द 20th of September, then there is रैम्बो राजकुमार जो नवंबर एंड दिसंबर में रिलीज हो रही है, जो इसी साल आ जाएगी। एंड देन देयर इज अ फिल्म जो मैं विशाल भारद्वाज सर के साथ कर रहा हूँ, व्हिच इज एन अडैप्टेशन ऑफ हैमलेट। विलन टॉकीज के बारे में कुछ कहेंगे? खबरें आ रही हैं Sorry? मेरे टॉपर्स के बारे में क्या है? जी मुझे ऑफर हुई है फिल्म, मैंने अब तक सुनी नहीं है। एक बार मैं प्रमोशंस खत्म कर लूँ फिर मैं सुनूंगा और फिर मैं बताऊंगा लोगों को कि क्या है। हाउ मच यू बिलीव इन इंटेंसिव प्रमोशन जो एक्टिविटीज होती है फिल्म के प्रमोशन रिलीज होने से पहले, कितना आप बिलीव करते हो, कितना कंफर्टेबल है इन सब चीज़ों में? मैडम मैं तो प्रमोट ही कर रहा हूँ पिछले 10 दिनों से, और अगले 13 दिन प्रमोट करूँगा। तो आई थिंक स्पेशली जब आप सोलो हीरो फिल्म करते हैं ना, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्टर के ऊपर आ जाती है। जब 2-3 एक्टर्स होते हैं तो देयर आर मोर पीपल टू प्रमोट द फिल्म, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो आउट देयर एंड प्रमोट योर फिल्म। काफ़ी बार आदमी थक जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि मैं कितनी बार एक ही चीज़ बोलूँ, लेकिन ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाना अपनी फिल्म, एंड आई डोंट माइंड प्रमोटिंग अ फिल्म। आई गेट टायर्ड प्रमोटिंग इट बट आई डोंट माइंड प्रमोटिंग इट। कुछ रैम्बो राजकुमार के बारे में बताएंगे, अबाउट द किरदार, किस तरह की फिल्म है? सर प्रभु सर को मैं हमेशा कहता हूँ दैट ही इज़ द मवाली किंग, तो फुल ऑन मवाली कैरेक्टर है रैम्बो राजकुमार।
जिस तरह की उनकी फिल्में होती हैं उसी तरह का कैरेक्टर है। और हार्डकोर एक्शन है फिल्म के अंदर, बहुत सारा एक्शन है, 5 गाने हैं, 5 के 5 आइटम सॉन्ग्स हैं, तो बड़ी सारी डांसिंग है और कॉमेडी है। उसमें मैं सोनाक्षी हैं साथ में पहली बार काम कर रहे हैं, तो फुल ऑन फन फिल्म है। बाकी तो आप आई थिंक 2 हफ्ते में प्रोमो रिलीज हो जाएगा, तो फिर आप लोग खुद ही देख लेंगे। कमीने 2 होने वाली है या नहीं, कुछ बात हुई आपके विषय में? मैं रोज विशाल सर से यही पूछता हूँ कमीने 2 होने वाली है या नहीं, तो ये उन पर डिपेंड करता है, ये सवाल आप उनसे पूछिए। इस फिल्म में फिलहाल मेरा फेवरेट गाना है धतिंग नाच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।